السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم چین کی ترقی کے میدان میں تیزی سے طے کی ہوئی منازل کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے پروگرام میں چینی اسٹاک مارکیٹس میں بڑھتی ہوئی عالمی دلچسپی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ سمیت مختلف دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس شامل ہیں۔ تو آئیے حسب معمول پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چائنا کے متعدد پالیسیوں کے اعلان کے بعد چین کی اسٹاک مارکیٹس میں بڑھتی ہوئی عالمی دلچسپی اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے چینی اثاثوں کی خرید کو دیکھا جا رہا ہے۔ 27 ستمبر کو چینی اثاثوں کی ملکیت میں ایک ہی دن میں تقریباً 530 ملین امریکی ڈالر کا اضافہ ہوا، جبکہ ستمبر کے آخری 3 تجارتی دنوں میں چینی اسٹاک ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کی مصنوعات میں آنے والے نئے فنڈز 2.4 بلین امریکی ڈالر تک پہنچے، جو گزشتہ 9 ماہ کی اس طرح کی مصنوعات میں آنے والے کل فنڈز کے قریب ہیں۔ متعدد پالیسیوں کے اعلان کے بعد چین کی اسٹاک مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی عالمی دلچسپی اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی چینی اثاثوں کی خرید کو دیکھا جا رہا ہے۔ ہانگ کانگ ایکسچینج اینڈ کلیئرنگ لمیٹڈ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق JP مورگن چیس نے 27 ستمبر کو ہانگ کانگ کے متعدد اسٹاک خریدے اور اس کی چینی اثاثوں کی ملکیت میں ایک ہی دن میں تقریباً 530 ملین امریکی ڈالر کا اضافہ ہوا۔ سوئٹزرلینڈ کے UBS اور امریکہ میں مقیم بلیک راک جیسی کمپنیوں نے بھی حال ہی میں چین کے حصص کے لیے اپنی سرمایہ کاری کی درجہ بندی میں اضافہ کیا ہے۔ ستمبر کے آخری 3 تجارتی دنوں کے دوران چینی اسٹاک ایکسچینج ٹریڈ فنڈز کی مصنوعات میں آنے والے نئے فنڈز 2.4 بلین امریکی ڈالر تک پہنچے، جو گزشتہ 9 ماہ کے دوران اسی طرح کی مصنوعات میں آنے والے کل فنڈز کے قریب ہیں۔ چین کے مالیاتی حکام نے ستمبر کے آخر میں معیشت کی بحالی کو بڑھانے کے لیے توقع سے زیادہ وسیع پالیسی پیکج کا اعلان کیا تھا۔ چین کی سافٹ ویئر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سروس انڈسٹری کا 2024 کے پہلے 8 مہینوں میں ایک مضبوط آپریشن کارکردگی کا مظاہرہ، منافع میں اضافے میں معمولی سست روی کے باوجود مستحکم آمدنی میں اضافے اور برآمدات میں مثبت رجحان دیکھا گیا۔ وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق چین کی سافٹ ویئر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سروس انڈسٹری نے 2024 کے پہلے 8 مہینوں میں ایک مضبوط آپریشنل کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جس میں منافع میں اضافے میں معمولی سست روی کے باوجود مستحکم آمدنی میں اضافے اور برآمدات میں مثبت رجحان کو دیکھا گیا ہے۔ 8 ماہ کی مدت میں سافٹ ویئر کی صنعت نے 8.549 ٹریلین یوان یعنی تقریباً 1.218 بلین امریکی ڈالر کی آمدنی میں اضافہ کیا، جو پچھلے 7 مہینوں میں دیکھی گئی شرح نمو کے مطابق سال بسال 11.2% اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس شعبے کا کل منافع 1.022 ٹریلین یوان یعنی 146 بلین امریکی ڈالر تک پہنچا، جس میں سال بسال 9.8% اضافہ ہوا۔ خاص طور پر سافٹ ویئر کی برآمدات 36.2 بلین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 3.8% زیادہ ہے، جو بین الاقوامی خدمات کے شعبے میں بہتری کی نشاندہی کرتی ہیں۔ قومی سافٹ ویئر کی آمدنی کے لحاظ سے مشرقی خطے نے 83.5%، وسطی خطے نے 4.6%، مغربی خطے نے 9.6% اور شمال مشرقی خطے نے 2.3% حصہ لیا۔ چین میں قومی دن کے موقع پر ہفتہ بھر کی تعطیلات کے دوران ٹورزم انڈسٹری نے بھرپور بزنس کیا۔ اس موقع پر بہت سے قدرتی مقامات پر سہولیات کو اپ گریڈ کیا گیا ہے اور صارفین کی سرگرمیوں کو متحرک کرنے کے لیے مخصوص سیاحتی منصوبے شروع کیے گئے۔ چین میں 1 اکتوبر سے شروع ہونے والی ہفتے بھر کی قومی دن کی تعطیلات کے دوران ایک مضبوط ٹورزم انڈسٹری دیکھی گئی۔ چین بھر میں بہت سے مقامات نے قدرتی مقامات پر خدمات کو اپ گریڈ کیا ہے اور صارفین کی سرگرمیوں کو متحرک کرنے کے لیے مخصوص سیاحتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ شنگھائی میں سیاح دریائے ہوانگچو کے کنارے تعمیراتی زمین کی تزئین و آرائش اور شہر کے شاندار نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اورینٹل پرل ٹاور پر یادگار تصاویر کھینچ سکتے ہیں۔ تعطیلات کے پہلے 5 روز میں اورینٹل پرل ٹاور پر کل 1,35,000 وزٹس دیکھے گئے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 4% اضافہ ہے۔ شنگھائی کے شنشن نیشنل ٹورسٹ ریزورٹ میں ہیپی ویلی کے قدرتی علاقے میں مجموعی طور پر 78,000 سیاح آئے، جو سال بسال 2.5% اضافہ ہے۔ تعطیلات کے پہلے 4 دنوں میں 75,000 سیاحوں نے مشرقی چین کے صوبے فوجیان کے سانمنگ شہر میں ٹیننگ کاؤنٹی کا دورہ کیا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 13.64% اضافہ ہے۔
اس کے علاوہ مشرقی چین کے صوبے شینڈونگ کے شہر کنگداؤ کے ایک مشہور قدرتی علاقے لاؤشان ماؤنٹین میں بھی ان تعطیلات کے دوران سیاحوں کا ہجوم دیکھا گیا۔ قومی دن کے موقع پر 7 روزہ تعطیلات کے چھٹے دن باکس آفس نے 1.9 بلین یوان کو عبور کیا۔ اس سال فلموں میں سائنس فکشن، بچوں کی اسمگلنگ کے خلاف ڈرامے، حب الوطنی اور روایتی چینی رقص و ثقافت سمیت مختلف موضوعات پیش کیے گئے جو شائقین کی ترجیحات کو پورا کرتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 7 روزہ تعطیلات کے چھٹے دن شام 6:18 تک باکس آفس نے 1.9 بلین یوان یعنی تقریباً 270 ملین امریکی ڈالر کو عبور کر لیا تھا۔ اس سال کی فلموں میں سائنس فائر، بچوں کی اسمگلنگ کے خلاف ڈرامے، حب الوطنی اور روایتی چینی رقص ثقافت سمیت مختلف موضوعات پیش کیے گئے۔ چھٹیوں کے دوران مشرقی چین کے جیانگسو صوبے کے سوزہو شہر میں واقع چائنا فلم آرکائیو کے جیانگنان سینٹر نے مختلف سرگرمیاں منعقد کیں جس سے فلم دیکھنے والوں کو سینما کی طرف راغب کیا گیا۔ اس کے علاوہ مرکز نے عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے چین کی تاریخ اور ترقی کو پیش کرنے والی بہت سی کلاسک فلمیں جیسے دی برتھ آف نیو چائنا، ہولڈ یور ہینڈز اور ہوانگ ہاؤمی بھی دکھائیں۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے ہانگ کانگ گیریزن نے عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی 75ویں سالگرہ پر ہفتے کے روز عوام کے لیے اپنی بیرکوں کو کھولا۔ نیگونگ شوین چاؤ بیرکوں میں تقریب کا آغاز پرچم کشائی کی تقریب سے ہوا۔ افسران نے مختلف فوجی نمائش پیش کی جنہیں پسند کیا۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے ہانگ کانگ گیریزن نے عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی 75ویں سالگرہ پر ہفتے کے روز عوام کے لیے اپنی بیرکوں کو کھولا۔ ننگونگ شیوین چاؤ بیرکوں میں تقریب کا آغاز پرچم کشائی کی تقریب سے ہوا۔ افسران نے مختلف فوجی نمائشیں پیش کی جنہیں پسند کیا گیا۔ دفاعی آلات کی نمائش نے بھی حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اوپن ڈے ایونٹ کے دوران شرکاء نے PLA ہانگ کانگ گیریزن نمائشی مرکز بھی دیکھا جو مقامی لوگوں کے لیے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ موضوعاتی نمائش مختلف ذرائع سے چین کی کمیونسٹ پارٹی، قوم اور چینی پیپلز لبریشن آرمی کی کہانیاں بیان کرتی ہے جس میں ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز، موضوعاتی مجسمے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز شامل تھیں۔ چین کے الیکٹرانک انفارمیشن مینوفیکچرنگ سیکٹر نے 2024 کے پہلے 8 مہینوں میں پیداوار میں ٹھوس نمو دیکھی گئی۔ اسی عرصے میں اسی شعبے میں بڑی کمپنیز کی ویلیو ایڈڈ صنعتی پیداوار میں سال بسال 13.1% اضافہ ہوا۔ وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اعداد و شمار کے مطابق چین کے الیکٹرانک انفارمیشن مینوفیکچرنگ سیکٹر نے 2024 کے پہلے 8 مہینوں میں پیداوار میں ٹھوس نمو دیکھی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اسی عرصے میں اس شعبے میں بڑی کمپنیوں کی ویلیو ایڈڈ صنعتی پیداوار میں سال بسال 13.1% اضافہ ہوا۔ سیل فون کی پیداوار اس شعبے میں ایک اہم پروڈکٹ ہے جو 1.015 بلین یونٹس تک پہنچی۔ ان میں سے 751 ملین یونٹ اسمارٹ فونز تیار کیے گئے جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 10.4% زیادہ تھے۔ وزارت کے مطابق بڑی کمپنیوں کی مشترکہ برآمدی ترسیل کی قیمت میں سال بسال 1.2% اضافہ ہوا۔ اس عرصے کے دوران لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فونز کی برآمدات میں سال بسال بالترتیب 2.0% اور 4.6% اضافہ ہوا۔ چین کی لائٹ انڈسٹری کا سفر 2024 کے پہلے 8 مہینوں میں ہموار رہا ہے۔ نیشنل لائٹ انڈسٹری کونسل کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں ویلیو ایڈڈ میں 4.9% اضافہ ہوا۔ آلات کی بڑے پیمانے پر اپ گریڈنگ اور صارفین کے سامان کے لیے ٹریڈنگ پروگرام سمیت مختلف پالیسیز کی وجہ سے چین کی لائٹ انڈسٹری کی پیداوار میں مستحکم ترقی دیکھی گئی۔ چین کی لائٹ انڈسٹری کا سفر 2024 کے پہلے 8 مہینوں میں ہموار رہا ہے۔ چین کی نیشنل لائٹ انڈسٹری کونسل کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں ویلیو ایڈڈ میں 4.9% اضافہ ہوا ہے۔ قومی ادارہ شماریات کی جانب سے جن 91 لائٹ انڈسٹریل مصنوعات کی گنتی کی گئی ہے ان میں سے جنوری سے اگست تک 59 مصنوعات کی پیداوار میں اضافہ ہوا جن میں سائیکلوں اور لیتھیم بیٹریوں سمیت 17 مصنوعات کی پیداوار میں 2 ہندسوں میں اضافہ برقرار رہا۔ آلات کی بڑے پیمانے پر اپ گریڈنگ اور صارفین کے سامان کے لیے ٹریڈ ان پروگرام سمیت پالیسیوں کی وجہ سے چین کی لائٹ انڈسٹری نے پیداوار میں مستحکم ترقی دیکھی ہے اور اس کے منافع میں بھی بہتری آتی رہی ہے۔ 8 مہینوں میں چین میں نامزد کردہ سائز سے زیادہ ہلکے لائٹ انڈسٹریل آرگنائزیشن کی آپریٹنگ آمدنی میں 1.6% اضافہ ہوا اور منافع میں 12.4% اضافہ ہوا۔
8 माह की मुद्दत में पूरी लाइट इंडस्ट्री की कुल बरामदात के हजम ने 600 बिलियन अमरीकी डॉलर से तजावुज किया है, जो साल ब साल 3.5% इजाफा है। अद्वियात और तिब्बी खिदमात के लिए आलमी म्यार का मरकज बनने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर शंघाई तिब के शोबे में सलाहियतों को फरोग देने के लिए 20 से ज्यादा ममालिक और खित्तों के साथ ताउन कर रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ शोबा तिब से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन का क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अद्वियात और तिब्बी खिदमात के लिए आलमी मयार का मरकज बनने की अपनी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर शंघाई तिब के शोबे में सलाहियतों को फरोग देने के लिए 20 से ज्यादा ममालिक और खित्तों के साथ ताउन कर रहा है। बाद सुलिन मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाले एक डॉक्टर हैं। वो शंघाई के रोजन अस्पताल में कार्डिक सर्जरी के माहिरीन से दिल के अमराज के इलाज की जदीद तकनीकें सीख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अपनी तालीम के जरिए वो मजीद नई टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक तालिब इल्म बोस्तिखोन के मुआफ ग्रेजुएट तालिब इल्म के तौर पर शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में तालीम हासिल कर रहे हैं। वो एक्यूपंक्चर और मॉक्सबिशन से मुताल्लिक इलाज में महारत हासिल कर रहे हैं, जिनमें कपिंग और वार्मिंग थेरेपी शामिल हैं। क्योमोव कहते हैं कि वो इन पुख्ता रिवायती चीनी तिब्बी तकनीकों को उज़्बेकिस्तान में आजमाना चाहते हैं, ताकि उज़्बेकिस्तान के लोग भी इस तरह की खिदमात से मुस्तफीद हों। चीन के 4 बड़े शहरों में नई रियल एस्टेट पॉलिसियों के इतलाक हो गया, जिसमें पहले दर्जे के शहर इस रुझान की क़यादत कर रहे हैं। सितंबर के आखिर में बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू और शेंजन समेत बड़े चीनी शहरों ने रियल एस्टेट पॉलिसी एडजस्टमेंट की एक नई समत मुतारिफ करवाई, जिसका मकसद प्रॉपर्टी मार्केट को जिंदा करना है। चीन के 4 बड़े शहरों में नई रियल एस्टेट पॉलिसियों के इतलाक के साथ सनत से वाबस्ता अफराद का ख्याल है कि मुतादिद महकमों के जरिए नाफिज किए गए इक़दामात को मार्केट के एतमाद को बढ़ाने में मदद फराहम करेंगे और प्रॉपर्टी मार्केट की बहाली में मुआविन साबित होंगे, जिसमें पहले दर्जे के शहर इस रुझान की क़यादत कर रहे हैं। सितंबर के आखिर में बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू और शेंजन समेत बड़े चीनी शहरों ने रियल एस्टेट पॉलिसी एडजस्टमेंट की एक नई लहर मुतारिफ कराई, जिसका मकसद प्रॉपर्टी मार्केट को जिंदा करना है। 1 अक्टूबर से बीजिंग ने जायदाद की नई पॉलिसियां मुतारिफ करवाईं, जिनमें खरीदारी की पाबंदियों को कम करने और क्रेडिट सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो दी गई है। पहली बार घर खरीदने वालों के लिए कम से कम अदायगी 20% से कम होकर 15% हो गई है और दूसरे घरों के लिए 30% से कम होकर 20% हो गई है, जिससे माली दबाव कम होता है और पहली बार घर खरीदने वालों और अपने घरों को अपग्रेड करने के ख्वाहां अफराद दोनों को सहूलत मिलती है। नई पॉलिसी की रिलीज के बाद 3 दिनों में चीनी दारुल हुकूमत में नए घरों को देखने की तादाद में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 92.5% और ख़रीदारी के मुआहिदों में 2 गुना इजाफा हुआ है। रीसेल होम्स को देखने वालों की तादाद में भी साल ब साल 104.1% इजाफा हुआ। बीजिंग के अलावा दूसरे पहले दर्जे के शहरों जैसे शंघाई, शेंजन और ग्वांगझू ने इसी तरह के इक़दामात मुतारिफ कराए हैं, जिनमें कम अदायगी की ज़रूरियात और ज़िले से मुताल्लिक़ खरीदारी की पाबंदियों में नरमी शामिल है। शेंजो 18 के अमले के अरकान ने खला से बहिरा जनूबी चीन और जज़ायर शीशा के शानदार नज़ारे पेश किए हैं, जिससे इनकी खूबसूरती का एक अनोखा मंजर सामने आया है। मिशन के दौरान 3 खलाबाज ली ग्वांगफू, ली गांग और ली ग्वांगसू बादलों के सफेद समंदर से लेकर मुतहरिक नीले समंदर और रात को रोशन होने वाले शहरों के हैरत अंगेज मनाजिर पर हैरान हुए। शेंजू 18 के अमले के अरकान ने खला से बहेरा जनूबी चीन और जज़ायर शीशा के शानदार नज़ारे पेश किए हैं, जिससे इनकी खूबसूरती का एक अनोखा मंजर पेश हुआ है। 25 अप्रैल को चीन ने शेंजू 18 इंसान बरदार खलाई जहाज़ का आगाज़ किया, जिसमें 3 खलाबाजों को 6 माह के मिशन के लिए खलाई स्टेशन भेजा गया था। मिशन के दौरान 3 खलाबाज ली ग्वांगफू, ली खांग और ली ग्वांगसू बादलों के सफ़ेद समंदर से लेकर मुतहर्रिक नीले समंदर और रात को रोशन होने वाले शहरों तक के हैरत अंगेज मनाजिर पर हैरान हुए। ली ने बहेरा जनूबी चीन और ज़ीशा जज़ायर का नज़ारा दिखाया, जो उन्होंने खला से हासिल किया था। उन्होंने दिखाया कि बहेरा जनूबी चीन की वुसअत जज़ायर शीशा के साथ एक वाज़ेह तज़ाद पैदा करती है। समंदर का पानी गहरा नीला रंग पेश करता है और जजीरे नीले लहरों पर लगे रोशन मोतियों की तरह हैं, जिनमें से हर एक मुनफरिद दिलकशी के साथ चमकता है। ये जज़ायर तकरीबन 10 मुरब्बा किलोमीटर के कुल ज़मीनी रकबे के साथ 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा समुद्री इलाके में फैले हुए हैं। यूंगजियान जजीरा शीशा जज़ायर के जनूबी सिरे पर वाक़ है। जजीरे पर मुहित सब्ज़ पौधों को यहाँ से मुबहिम तौर पर देखा जा सकता है, जो हवा को रोकने और रेत को बेहतर करने के लिए एक माहौलियाती रुकावट है।
یہ وہ نشان ہے جو جزیرے پر تعینات PLA فوجیوں کی نسلوں سے چھوڑا ہے۔ 2012 میں صوبہ ہینان کا سانشا شہر یونگشنگ جزیرے پر قائم کیا گیا تھا، جو جزائر شیشا، جزائر زونگشا اور جزائر نانشا اور ان کے پانیوں کے جزائر اور چٹانوں پر حکومت کرتا ہے۔ یہ چین کا سب سے جنوبی اور سب سے بڑا پریفیکچر سطح کا شہر ہے۔ شنزو 18 کا عملہ تقریباً 6 ماہ تک مدار میں رہنے کے بعد رواں سال اکتوبر کے آخر میں زمین پر واپس آنے والا ہے۔ چین کی 144 گھنٹوں کی ویزا فری ٹرانزٹ پالیسی چائنا ٹریول کی مقبولیت کو فروغ دے رہی ہے۔ غیر ملکی زبان کی ٹور گائیڈ کے طور پہ ہر روز لیوبنگ کا پہلا کام ہوائی اڈے پر شنگھائی پہنچنے والے بین الاقوامی سیاحوں کا انتظار کرنا ہے۔ چین کی 144 گھنٹے کی ویزا فری ٹرانزٹ پالیسی چائنا ٹریول کی مقبولیت کو فروغ دے رہی ہے۔ غیر ملکی زبان کے ٹور گائیڈ کے طور پر ہر روز لیوبنگ کا پہلا کام ہوائی اڈے پر شنگھائی پہنچنے والے بین الاقوامی سیاحوں کا انتظار کرنا ہے۔ لیو کہتے ہیں کہ شنگھائی غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک لازمی منزل ہے جہاں وہ چین کی ترقی کی قابل ذکر رفتار کا براہ راست مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ 144 گھنٹے کی ویزا فری ٹرانزٹ پالیسی کی وجہ سے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ان میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں سے پہلے زیادہ سیاح نہیں آتے تھے۔ چین میں بین الاقوامی سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو راغب کرنے کے لیے 144 گھنٹے کی ویزا فری ٹرانزٹ پالیسی کو ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ملک کے اعلیٰ سطح کے کھلے پن کو آگے بڑھانے، چین اور دیگر ممالک کے درمیان لوگوں کے بہاؤ کو آسان بنانے اور تبادلے اور تعاون کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شمال مغربی چین کے صوبہ چنگائی میں ایک فوٹو وولٹک پاور سٹیشن نے پرانی بنجر زمین کو قابل تجدید توانائی کے مرکز میں تبدیل کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کی پیداوار، مقامی معاشی ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کی کوششوں میں مثالی شراکت جاری ہے۔ شمال مغربی چین کے صوبے چنگھائی میں ایک فوٹو وولٹک پاور اسٹیشن نے ایک پرانی بنجر زمین کو قابل تجدید توانائی کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کی مقامی پیداوار، معاشی ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کی کوششوں میں مثالی شراکت پیش کر رہی ہے۔ 609 مربع کلومیٹر پر محیط ہینان تبتی خود اختیار پریفیکچر میں چنگھائی تلاتان فوٹو وولٹک پاور اسٹیشن 8430 میگا واٹ کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے، جو اسے دنیا کا سب سے بڑا فوٹو وولٹک پاور اسٹیشن بناتا ہے۔ یہ اسٹیشن توانائی کے 91 کاروباری اداروں کو ساتھ لیے ہوئے ہے، جن میں 63 شمسی فوٹو وولٹک پاور انٹرپرائزز اور 28 ونڈ پاور انٹرپرائزز شامل ہیں۔ پاور اسٹیشن میں ایک بڑی سہولت فی الحال زیر تعمیر ہے، جس میں 9 لاکھ کلو واٹ فوٹو وولٹک توانائی اور 1 لاکھ کلو واٹ فوٹو تھرمل توانائی کے منصوبے شامل ہیں۔ یہاں 23,000 سے زیادہ ہیلو اسٹیٹس لگائے جائیں گے۔ رات کے اوقات اور ابر آلود دنوں میں توانائی کو ذخیرہ کرنے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے علاقے میں ایک بڑا تھرمل اسٹوریج ٹینک بنایا جائے گا۔ تھرمل اسٹوریج ٹینک میں 29,000 ٹن پگھلا ہوا نمک ہوتا ہے، جو گرم ہونے کے بعد 12 گھنٹے تک مسلسل بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ یوں یہ رات یا ابر آلود دنوں میں ذخیرہ شدہ حرارت کو مسلسل جاری رکھ سکتا ہے، جس سے یونٹ کے طویل مدتی بلا تعطل کام کرنے اور فوٹو وولٹک نظام کی حدود پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے، جو ان اوقات میں بجلی پیدا نہیں کر سکتے۔ مختلف سازگار قومی پالیسیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیپال کی سرحد سے متصل علاقے میں واقع ایک دلکش چینی قصبہ گائرونگ میں سرحد پار تجارت اور سیاحت میں تیزی سے ترقی دیکھی گئی، جس سے مقامی باشندوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ مختلف سازگار قومی پالیسیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیپال کی سرحد سے متصل علاقے میں واقع ایک دلکش چینی قصبہ گائرونگ نے سرحد پار تجارت اور سیاحت میں تیزی سے ترقی دیکھی ہے، جس سے مقامی باشندوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ لہٰذا سے تقریباً 820 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے اور نیپال کے دارالحکومت کھاٹمنڈو سے تقریباً 131 کلومیٹر دور واقع ہے، جو تقریباً 93 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ وادی نے چنگھائی زیسانگ سطح مرتفع اور جنوبی ایشیا کے اندرونی علاقوں کے درمیان ایک اہم نقل و حمل کے راستے کے طور پر کام کیا ہے۔ تاریخی طور پر اس نے سرکاری سڑک اور تجارتی سڑک کے امتزاج کے طور پر کام کیا ہے۔ اپنی طویل تاریخ کے علاوہ اس چھوٹے سے قصبے میں نئے دور میں اہم تبدیلیاں آئی ہیں۔ آج قدیم تجارتی مقام پر ایک زمینی بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔
1961 में गायरोंग बंदरगाह को खोलने की मंजूरी मिली। इसे 1972 में दूसरे दर्जे की ज़मीनी बंदरगाह करार दिया गया था और 1987 में इसे कौमी फर्स्ट क्लास लैंड पोर्ट में अपग्रेड किया गया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बदौलत गायरोंग बंदरगाह पर सरहदी तिजारत का हजम मुसलसल बढ़ रहा है। 2017 में बंदरगाह को एक बैनुल-अक़वामी बंदरगाह के तौर पर नामजद किया गया था, जिससे चीन और नेपाल के अलावा दीगर ममालिक के अफराद तक रसाई की इजाज़त मिली। तिजारती हजम के लिहाज से बुनियादी तौर पर आम तिजारती सामान हुआ करता था, ताहम हाल ही में नई तवानाई की गाड़ियों, पहाड़ी इलाकों में पीने के पानी और कुछ ज़रई और साइड लाइन मसनूआत की बरामद के साथ लगता है कि ये तनव्वुज़ ज़्यादा हो गया है। इस साल जनवरी से अगस्त तक जीसांग में दरामद और बरामद की कुल मालियत 7 बिलियन युआन यानी तकरीबन 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई, जिसमें गायरोंग बंदरगाह ने 2.5 बिलियन युआन से तजावुज़ किया। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो चीन के खुलेपन के हवाले से एक तारीखी इवेंट बन गया, जिससे बड़े आलमी नुमाइश करंदगान को अपनी मसनूआत की नुमाइश और राब्ते कायम करने में मदद मिलती है। ये दुनिया में इस तरह का वाहिद इवेंट है जहाँ कंपनीज नए ब्रांड्स इख्तिरात मुतारिफ करवाती हैं। चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो चीन के खुलेपन के हवाले से एक तारीखी इवेंट बन चुका है, जिससे बड़े आलमी नुमाइश कुनंदगान को अपनी मसनूआत की नुमाइश और राब्ते कायम करने में मदद मिलती है, जबकि मुल्क के हमवार कस्टम क्लियरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मुतासरकुन कामयाबियों का भी मुजाहरा होता है। शंघाई में 5 नवंबर से 10 नवंबर तक मुनक्किद होने वाली 7वीं एक्सपो के लिए तकरीबन 260 फॉर्चून 500 कंपनी और सनत के रहनुमाओं समेत 1000 से ज़ायद कारोबारी इदारों ने दस्तखत किए हैं। दुनिया की पहली दरामदी थीम वाली कौमी सतह की नुमाइश के तौर पर इस एक्सपो का मुसलसल 6 सालों से शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इनेकाद किया गया है, जिससे नुमाइश कुनंदगान को सरमायाकार बनने में मदद मिलती है। 2018 में पहले एडिशन के बाद से मजमूई तौर पर 142 ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने इवेंट में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिरकत की है, जिनमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल 117 ममालिक और 26 कम तरक्की याफ्ता ममालिक शामिल हैं। एक्सपो के लिए 3,60,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा का एक नुमाइशी इलाका मुख्तस किया गया है, जिसमें 9 प्रमोशन और मैच मेकिंग इवेंट्स मुनक्किद किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 20 सनती रहनुमाओं के साथ अहम ख़रीदारी शराकतदारी के मुआहदे शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी मंदोबीन और सनत के नुमाइंदे इत्तेफाक करते हैं कि ये एक्सपो सरहदों के आर पार मुनाफा बख्श कारोबारी शराकतदारी कायम करने के लिए इंतहाई अहम है। शुरका के ख्याल में वो चीन के साथ तजारती और इक़्तिसादी मैदान में फ़ाल तौर पर ताउन कर रहे हैं। शंघाई इंपोर्ट एक्सपो न सिर्फ मुकामी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक शानदार इवेंट है। शुरका के ख्याल में ये उनकी कौमी मसनूआत के नुमाइश के लिए एक आलमी प्लेटफार्म है और ये चीनी शराकतदारों और गैर मुल्की शराकतदारों के साथ जीत जीत ताउन और मौसर हल तलाश करने के लिए एक मवासलाती प्लेटफार्म भी है। चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो के पिछले 6 एडिशंस में 2400 से ज़ायद नई मसनूआत, टेक्नोलॉजीज़ और खदमात लॉन्च की गई हैं, जिनका मजमूई मुतवक्के लेन देन हजम 420 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद है। रवा साल 7वीं एक्सपो में भी कई नुमाया चीज़ें शामिल होंगी, जिनमें पहली बार नए मवाद के लिए खुसूसी नुमाइशी इलाके का क़याम, नई मार्केटों की तलाश के लिए इंक्यूबेशन एरिया के लिए जदतराजी और नुमाया मसनूआत के लिए मज़ीद मौक़े लाना शामिल हैं। शुरका इस एक्सपो को मौक़े जदतराजी, तबादले, ताउन और मुश्तरका तरक्की पर मुश्तमिल एक इवेंट के तौर पर बयान करते हैं। ये दुनिया में अपनी नौइयत का एक ऐसा वाहिद इवेंट है जहाँ कंपनियाँ नए ब्रांड्स इख्तिरात मुतारिफ करवाती हैं। यह हकीकत भी उजागर होती है कि कंपनियां चीन में सरमायाकारी जारी रखना चाहती हैं। यह एक्सपो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स की शनाख्त हासिल करने के रास्ते के तौर पर काम करती है। शुरका के मुताबिक उन्होंने देखा है कि एक्सपो ने चीनी मार्केट को ज़्यादा खुला बना दिया है, जिससे तजारती लिबरलाइजेशन और इक़्तिसादी ग्लोबलाइजेशन के मकसद को हासिल करने में मदद मिली है। ये इवेंट कंपनियों को चीनी सार्फिन के मफादात को पूरा करने वाली मसनूआत और टेक्नोलॉजीज़ तैयार करने के अपने हदफ की तरफ मदद करती है। चीनी इक़्तिसादी राहदारी की तामीर और तरक्की एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी, जहाँ चीन और पाकिस्तान के माबैन ताउन को मुसलसल फ़रोग़ दिया जा रहा है। रवां साल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन के दौरान चाइना मीडिया ग्रुप और पाकिस्तानी चैनल के दरमियान ताउन के क़यादाश्त पर दस्तखत भी हुए, जिससे मीडिया के शोबे में दोनों ममालिक का इश्तराक मज़ीद मजबूत हुआ।
चीन बा इक्तिसादी रहदारी की दामिरो तरक्की अब आरा मियार के एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में दावन मुसलसल फरोह दिया जा रहा है। रवांग साल जो में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दौराए चीन के दौरान चाइना मीडिया ग्रुप और पाकिस्तान टेलीविजन के दरमियान दावन की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जिससे मीडिया के शोबे में दोनों ममालिक का इश्तिराक मजीद मुस्तहकम हुआ है। मीडिया का जो किरदार है वो एक मुसलमा हकीकत है, और मीडिया चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका एक बहुत जानदार किरदार होता है सोसाइटीज़ को बनाने के लिए और माशरों को मजबूत करने के लिए। ममालिक की जो उनकी क़ुव्वत है, उनके जो अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको उजागर करने के लिए। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो हमारी जो दोनों वजारत इत्तलाआत जो हैं, उनके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग और जो मुआहदे हुए हैं, उनकी रोशनी में हमें CPEC के जो समरात हैं उनको उजागर करना इंतहाई ज़रूरी है। जो 2015 में जब CPEC के मुआहदों पर दस्तखत हुए तो उस वक़्त 20 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग थी और पाकिस्तान की ज़राअत पीली हो गई थी। पाकिस्तान की सनतों की जो चिमनियाँ हैं उनसे धुआं निकलना बंद हो गया था और बेपनाह बेरोज़गारी थी। हमारी मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मीडिया को CPEC के आरा मियार की तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुस्बत अवामी राय तश्कील देने में मौसर किरदार अदा करना चाहिए। CPEC ने पाकिस्तान की मईशत में दोबारा जान पैदा की और हमें मीडिया के ज़रिए इन बहुत मस्बत जो कामयाबियाँ हैं उनको उजागर करना है। सोशल मीडिया का भी बहुत अपना एक किरदार है, बशर्तिया कि वो किरदार मस्बूत हो, मनफी ना हो। और आप देखिए कि अभी हमारे और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ये दोस्ती एक मुनफरिद दोस्ती है अक़वाम आलम में। इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये एतमाद पर मबनी है, ये बामी एहतराम पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया ताउन को मज़ीद मजबूत किया जाएगा और पाक चीन दोस्ती की कहानी को बेहतर अंदाज में बयान करने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रहेंगी। चीन के मीडिया को और पाकिस्तान की मीडिया को ये बात तूल अर्ज़ में बतानी चाहिए। ये है वो दोस्ती, ये है वो एक हमारा ताल्लुक़, तारीख़ी ताल्लुक़ जो कि हर आड़े वक्त में हमेशा अवाम के, दोनों मुल्कों के अवाम के न सिर्फ एतमाद पर पूरा उतरा बल्कि पूरी दुनिया वर्ताए हैरत में है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कितने मजबूत रिश्तों में जुड़ी हुई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ जो हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं उनमें मज़ीद मजबूती पैदा होनी चाहिए, मज़ीद करीबी रवाबत पैदा होनी चाहिए, ताकि हम जो ये तमाम जो मस्बत पॉइंट्स हैं उनको हम उजागर करें। हमें इन तमाम पहलुओं को अपने मीडिया हाउसेस के ज़रिए मज़ीद उजागर करना चाहिए।
सी फार्मिंग क्या है? अफजाइश किया हुआ समंदरी खाना। सारे का सारा इलाका एक समंदरी फार्म जहां लोग कुदरती माहौल में मसनूई तौर पे समंदरी हयातियात की अफजाइश करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं सीफूड खाने की बहुत शौकीन हूँ। एक दिन रेस्टोरेंट में मजेदार सीफूड खाते हुए मुझे ख्याल आया कि अगर मैं साहिल समंदर पर जाऊं तो क्या मुझे मजीद मजेदार सीफूड मिलेगी। लिहाजा मैंने खुद सीफूड पकड़ने का फैसला किया। ये बहरहाल वो है कि दूसरी बड़ी बंदरगाह है। मैं समंदर के किनारे खड़ी थी। चोइस हवा में फड़फड़ा रहा था। बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। सीफूड, मैं आ रही हूँ। दाहम, मुझे समंदर जाने के लिए एक भी जहाज नहीं मिल सकता। 不开了，不开了，不开了。孩子来晚了，没有船出海。你们来之前是不是没看手机啊？现在啊是休渔期。 माहीगीरी बंद है, कश्तियाँ नहीं है, हम नहीं मिल सकती। जब मैं घर वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक मुझे एक ख्याल आया। रुको, हमारी मेजों पे ताजा समुद्री खाना कहाँ से आया है? 想吃海鲜呀，那去城口镇看一下吧，那边有个海洋牧场，刚好大丰收。 अच्छा, अफजाइश क्या समुद्री खाना। दोस्तों, ये वाकई अमेजिंग है। ये पूरा इलाका एक समुद्री कैद है। समुद्री कैद जैसे नाम से पता चलता है, लोग कुदरती समुद्री माहौल में मसनूई तौर पर समुद्री हयातियात की अफजाइश करते हैं। बिल्कुल जमीन पर मवेशियों और भेड़ों को चराने की तरह है। यहाँ लोग ज्यादातर शेलफिश की अफजाइश करते हैं। देखो, ऑयस्टर्स को तंत्रों में डालकर उनकी समुद्र में अफजाइश होती है और उन्हें 30 साल तक बढ़ने में तकरीबन आधा साल लगता है। शेलफिश को मुनहब करना इसलिए है कि यहाँ शेलफिश की मार्केट बहुत अच्छी है और इससे ज्यादा अहम बात यह है कि शेलफिश माहौल दोस्त है। जैसे जैसे शेलफिश बढ़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी मिकदार जज्ब करती है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो उसका हो है। हर किलोग्राम का ऑयस्टर हर साल 1 किलोग्राम कार्बन फिक्स कर सकते हैं। हमारे सामने तकरीबन 150 हेक्टर, तकरीबन 11,250 टन ऑयस्टर्स अफजाइश किए जाते हैं। इसके कार्बन सिंक की कीमत हर साल तकरीबन 1,70,000 एकड़ जंगल को दोबारा बनाने के बराबर है। ऑयस्टर फिल्टर फीडिंग जानदार है जो पानी को अच्छी तरह साफ कर सकती है। यहाँ के ऑयस्टर से बढ़िया वो है कि पानी को फिल्टर करने में सिर्फ 7 से 10 दिन लगता है। ये नाकाबिले यकीन बात यह है कि एक छोटी सी शेलफिश इतनी बड़ा काम कर सकता है। समुद्री कैद की मदद से यहाँ के समुद्री पानियों में आला मियार के आबी ज़खायर का तनासुब 88.9% तक पहुँच जाता है, जो शेल आइलैंड के मुनाजिर की भी हिफाजत करता है। इस नेशनल नेचर रिजर्व के अंदर परिंदों की अनवाय की तादाद 45 से बढ़कर 230 हो गई है। समंदरी कैद ने समुद्री हयातियात की अफजाइश और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खूबसूरत खाका तैयार किया है। यहाँ हर साल समुद्री खाने की एक बड़ी मिकदार तैयार की जा सकती है, जो कुदरती माहीगीरी के बंदिश के दौरान समुद्री खाने की कमी को पूरा कर सकती है। इससे लोगों को हमेशा अपने मेज़ों पे ताज़ा तरीन समुद्री खाना मिल सकता है और साथ ही साथ कुदरती माहीगीरी के वसाइलों के तहफ़्फ़ुज़ पर दबाव भी कम होता है। जी में अफजाइश किया गया समुद्री खाना और माहीगीरी का तनासुब तकरीबन 4:1 है। बड़े पैमाने पर समुद्री खाने की अफजाइश में हयातियात और समुद्री माहौल मुश्तरका तौर पर फिशेस कार्बन सिंक बनाते हैं। शेलफिश, तहालब और फिल्टर फीडिंग मछली जिनमें आबी ज़राअत की बड़ी सनत का तकरीबन 90 हिस्सा बनाती है, जो कार्बन न्यूट्रल करने में फाल किरदार अदा करती है। दोस्तों, आज से मैं शेलफिश को ज्यादा पसंद करने लगी हूँ क्योंकि
मज़ेदार खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ साथ मैं भी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। दोस्तों, ये वो ऑयस्टर्स हैं जो अभी हमने देखे हैं, ताज़ा बहुत फ्रेश है ना। ओह या 你好，美女，这是来自于中国文革之乡的滨州文革。文革全身上下都是宝，被誉为天下第一鲜啊！其中它的贝壳啊还可以做瓷器，请趁热品尝。哇哦，सेलफिश से बंधे हुए बर्तन के बारे में मैंने पहली बार सुना है, बहुत दिलचस्प है ना। दोस्तों, ये बर्तन शेल और कर्मिक हामाल से बनता है। ये बर्तन कागज की तरह पतला है और जेल जैसा सफेद है, और इसके साथ इसकी आवाज भी बहुत सुरीली है। आज का दिन हमें अपने हाथों से मछली पकड़ने की खुशी नहीं थी, लेकिन हमने समंदर की तरफ से दिए जाने वाले बहुत से तहाइफ देखे। माहीगीरी का तहफ़्फ़ुज़, समंदरी खेती बाड़ी और फसलें को खजाने में तब्दील करना, ये सब समंदर के तहाइफ के लिए हमारी लामहदूद ताज़ीम है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। हन का क्या मतलब है? चीन का हन खानदान पूरे चीन पर हुक्मरानी करने वाला दूसरा शाही खानदान। हन खानदान की असल कहानी क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के मरकजी नसरी गरबा को हान कहा जाता है। चीनी हुरूफ को हानज़ी कहा जाता है। चीनी जुबान को हानयू भी कहा जाता है। चीनी कदीम मरबूसात को इज्तिमाई तौर पर हानफू कहा जाता है। हान का क्या मतलब है? हान खानदान पूरे चीन पर हुक्मरानी करने वाला का दूसरा शाही खानदान था। आज मैं हान खानदान के बानी लियोबांग के आबाई शहर पेइशे में आई हूँ। आइए इसकी कहानी के जरिए हान सकाफत के हकीकी मफ़हूम को समझें। खानदान के बानी लियोबांग असल में एक आम किसान थे और सीशुइटी नामी इस जगह पर एक मामूली एहलकार के तौर पर खिदमत अंजाम देते थे। चिंग खानदान के उहद के एहतराम पर हुक्मरानों ने जुर्म को रिवाज दिया और लियोबांग ने अपने आबाई शहर में किसानों और शहरियों को बहादुरी से मुज़ाहमत करने की क़ियादत की। उन्होंने नारा लगाया, शहजादों और हुक्मरानों, क्या वो उम्दा नस्ल के साथ पैदा हुए हैं? 7 सालों के बाद लियोबांग ने हान खानदान कायम किया। ये रहना आज तक राइज है, जो चीनी अवाम के जुर्म के सामने बेनियाज और आखिर दम तक रहने की जज्बे की नुमाइंदगी करता है। वो अपने आबाई शहर वापस आए और दाफंग नामी एक नज़म तहरीक की, जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती रही है। उस वक्त शहंशाह लियोबांग 7 साल के थे। उन्होंने तमाम दर मरातिब के बावजूद अपने हम वतनों के साथ फतह का जश्न मनाया और गाया, तेज हवा चल रही है और बादल उड़ रहे हैं। मैं दुनिया को मुतहिद करने के बाद अपने आबाई शहर वापस आया हूँ, लेकिन मैं मुल्क की हिफाजत के लिए बहादुर जंगजू कैसे हासिल कर सकता हूँ? ये नज़म की जुबान सादा है, जो मुल्क के त्यौहार और इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश का इजहार करती है। हान खानदान का उहद 400 साल से ज़ायद अरसे तक कायम रहा और ये चीन की तारीख में पहला खुशहाल दौर था और ये चीनी सकाफत की बुनियादें रखी। हान खानदान ने न सिर्फ समाजी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की हासिल की, बल्कि सकाफत,
साइंस और टेक्नोलॉजी और फन में भी बड़ी कामयाबियां हासिल की। निस्वार्थ तौर पर सफारतकारी का आगाज किया, शाहराह रेशम को खोला और मशरिकी और मगरिबी के दरमियान सकाफती तबादलों को फरोग दिया। हान सकाफत का बुनियादी हिस्सा कन्फ्यूशियस सकाफत है, जो अहराकी असरों पर जोर देती है। हान खानदान ने सियासत में फसीरत और कानून की हुक्मरानी के इम्तिजाज की वकालत की, बादशाह की खूबी और हुकूमत के इंसाफ पर जोर दिया। मुआशी तौर पर मेहनत और किफायत रशियारी की वकालत की गई। ज़रूरी पैदावार और मुस्तकम इक्तिसादी तरक्की पर जोर दिया गया। हान सकाफत में शायरी, हदायती और मुसव्वरी जैसी आर्ट की शक्लें गहरे सकाफती वर्से और जमालियाती ज़ौक़ की अक्कासी करती हैं। हान खानदान ने तालीम और टेक्नोलॉजी की तरक्की को बहुत अहमियत दी। न सिर्फ अदब और फ़न के शोबों में बहुत से राज़वाल फ़न बारे सामने आए, बल्कि साइंसी शोबे में भी एहतिराकात मतरूफ हुई। कागज़साज़ी चीन की चार अजीम इजादात में से एक हान खानदान में सामने आई। तवीर मददी तरक्की में हान सकाफत दीगर सकाफतों को मुसलसल जज्ब और मरबूत किया है, जिससे जामियत खुसूसियात मौजूद में आए। हान खानदान ने कौमी सकाफतों के इंज़माम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पॉलिसियों का एक सिलसिला नाफिज किया, दूसरे कौमियतों के साथ अमन कायम किया और दूर दराज इलाकों के इंसानी इंतज़ाम को नाफिज किया। हान खानदान मजहबी अकायद में मुतनव्वे थे और दूसरे मज़ाहब भी मौजूद और तरक्की याफ्ता थे। आज की सिटी वॉक दरअसल कल्चर वर्ल्ड की तरफ है। आज हम हान खानदान में दाखिल हुए और हान सकाफत की हकीकी महफूज और जज्बे को महसूस किया है। हान खानदान के दौर से पैदा होने वाली हान सकाफत चीनी तहजीब में छुपा हुआ खजाना है। हान सकाफत न सिर्फ शानदार सकाफती आसार और शाहकार हैं, बल्कि चीनी कौम का रूहानी मरकज भी है, जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। चीनी लोग हान लिबास पहनकर, हान जुबान बोलकर और हान हुरूफ लिखकर अपने आबाओ अजदाद की दानिश को समझते हैं और इससे जदीद दौर में आगे बढ़ाते हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।